Student, in this lecture we are going to discuss about circular motion. So write down the definition. The motion of a body in a circle is called circular motion. So ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਇਸਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆ ਬੋਡੀ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਐਟ ਐਨੀ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੈਨ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਏ ਲਾਈਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਫੋਰਸ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ। ਨਾਓ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਏ ਸਰਕਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਸੇਮ ਟਰਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੇਮ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਜੋ ਉੱਚੇ ਨੇਮਸ ਨੇ ਸਿਮਲਰ ਨੇਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਟਾਇਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡਾਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਹ ਡਾਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਫੈਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦੈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਟਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਾਓ। ਵੇਰੀਅਸ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਸਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ? when a body moves from A point to B point that the shortest path ਬਿਲਕੁਲ straight path ਜਿਹੜਾ between two points with the direction from A to B is called displacement। ਬੋਡੀ A ਤੋਂ B ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੋਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਨਾਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਨੇਮ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। Let at time t is equal 0 body is at position A। ਮੰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਟਾਈਮ 0 ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਡੀ A 'ਤੇ ਸੀ। ਆ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ body reaches at point B ਜਾਂ position B। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬੋਡੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜੋ ਆ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਐਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ B। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ? T ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ? the angle covered by moving body is called angular displacement। जितना भी एंगल है इस बॉडी ने कवर कर लिया दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। we denote it by theta। ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਨੋ ਇਫ R ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੇਡੀਅਸ
द रिलेशन की है एंगल ना एंगल देखिए असी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये रिलेशन है सब तो पता सानू। ना थीटा की आ जाएगा आर्क ए बी अपॉन रेडियस आर। सो वी हैव फाउंड दिस वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आर के अपॉन दिस यानी कि मेन साडा टारगेट की है वी हैव टू फाइंड द एंगल थीटा ट्रांसफर्ड बाय दिस लाइन। ये लाइन इत्थे जी टच कर रही है सेंटर टू एज बॉडी नू ये किन्नी मुड़ के घूम के इस जगह पर आ गई वी से इट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जिस तरह डिस्प्लेसमेंट वो साढ़े को होंदा सी डिस्टेंस सी लेंथ सी एस के डिस्प्लेसमेंट की है दैट इज़ एंगल। हुण देखो फिर की होएगा व्हाट इज डिमेंशन फार्मूला डिमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होएगा करो याद लेंथ अपॉन लेंथ। सो व्हाट इज दिस m0 l0 t0 सारा कुछ जीरो आ गया। डिमेंशंस कोई डिमेंशन नहीं इट इज़ डिमेंशन लेस क्वांटिटी बट ऐसा यूनिट किया वी नो इट इज़ रेडियन। ख्याल रखना मैं दसिया सी डिफरेंस रेडियन इज ऐसा यूनिट ऑफ एंगल प्लेन एंगल का साढ़े को इस केस डिग्री भी असी यूज़ करते हैं आया याद एक तरफ है डिग्री असी यूज़ कर 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वी डिवाइड द सर्कल इन 360 पार्ट्स 360 डिग्री च एंगल आप कर सकते हैं वो डिग्री की फॉर्मेट आ पर ऐसा सिस्टम के वी यूज रेडियन। तो रिलेशन इन्होंने की साढ़े को हैगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये रिलेशन किया सी फिर भी तुसी याद रख लो पूरा सर्कल घूम जाएगा तो कितना एंगल ट्रांसफर करांगे वी से 2 पाई एंगल इज कवर्ड इट मीन डिग्रीज कितनी की 360 डिग्रीज। तो आ साडा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ मीनिंग की आ सर्कुलर मोशन दे विच जे डिस्प्लेसमेंट आ दैट इज़ ऑफ एंगल असी एंगल की गल करनी है इत्थे। फिर नैक्सट की आंदा साडे कोल वेलोसिटी। तो की सी वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की सी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगेन देखिए असी लेट बॉडी मूव्स फ्रॉम A to B in time t। So उत्थे वर्ड आ रहा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाउ वी आर टॉकिंग टू एंगुलर वेलोसिटी। ਤਾਂ मैं कह रहा सी उस मोशन च ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ वेलोसिटी पर ਅਸੀਂ कभी यूज़ नहीं किया। when velocity written it is understood we are talking about linear motion but जो सर्कुलर मोशन है वो स्पैसीफाई करते हैं इट इज़ एंगुलर वेलोसिटी एंड नाउ इट इज़ नोटेड बाय सॉरी ओमेगा। वर्ड का की नाम है ग्रीक वर्ड है वो ओमेगा W वर्गा लगता बट इसका नाम असी की लेना इस जगह पे ओमेगा। लेट बॉडी मूव फ्रॉम A टू B आन लग्या सानू कितना टाइम लग गया T। then angular velocity is defined as rate of change of angular displacement। थीटा क्या है थीटा इज सॉरी ओमेगा इज़ थीटा अपॉन टी। इस तरह लिख लो ब्रॉडली जिस तरह उसकी लिखते हैं वेलोसिटी की सी मैं याद दिला रहा तुहानू वेलोसिटी की लिखते असी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उत्थे चलो वैक्टर सी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो वी की सी एस अपॉन टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम फार्मूला इत्थे
ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਜਗ੍ਹਾ ਓਮੇਗਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਟੀ। ਕਰੋ ਨੋਟ ਪਲੀਜ਼। ਅਨਦਰ ਵੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਰਿਟਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥੀਟਾ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ, ਡੀ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ। ਬੋਡੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ज़्यादा ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਵਰਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ज़्यादा, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੈਣਾ, fraction of second, then angle covered would also be very small. So this formula can also be used d theta upon dt. ਇਹਦਾ ਵੈ ਫੁੱਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, rate of change of displacement with the time, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਥੀਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਫਾਸਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਸਲੋ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਲੋ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਸਲੋ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲੇਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਵਰ ਮੋਰ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਨ ਲੈਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਟੀ ਜਾਂ ਡੀ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਵਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਡੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਟੀ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਡੀ ਥੀਟਾ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਸਮਾਲ value of something, as case d theta is small angle here and d theta is small time. So पूरा क्या लिखना है, small angular displacement. So गल clear होगी सानू। ये देखिएगा further what are dimensions of this, ये dimensions की होंगे, its dimensional formula इस की बनेगा, की कह रहे थे असी ओमेगा थीटा अपॉन टी, थीटा असी हुणे देखा M0 L0 T0 तो की आ रहा टी, सॉरी T1 आ रहा साढ़े को नीचे, तो की M0 L0 T-1, इट्स SI यूनिट से ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਯੂਨਿਟ। ਐਂਗਲ का मेजर कर रहे हैं आप ऐसा ही रेडियन च, टाइम का कर रहे हैं सैकेंड च, सो रेडियन पर सैकेंड, रेडियन पर सैकेंड इज़ ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो ये गल्लां सानूं क्लीयर हो रही, बिल्कुल सेम जिस तरह वेलोसिटी आ रही सी, एस कौन आ रहा एंगुलर वेलोसिटी। नैक्सट हम साडे कोल एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन denoted by alpha। हाँ वर्ड तो बच्चे कॉमन नहीं जानते, फिर मैं लिखता इट इज एल्फा वर्ड है, एल्फा। हुण की कह रहे सानू, बॉडी इस तरह की है जिहदी फॉर्म जी मोशन है यूनीफॉर्म नहीं है। यूनीफॉर्म मोशन मीनस बॉडी जिस स्पीड से मूव कर रही है उस स्पीड च इन्हें चली जाना, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनीफॉर्म मोशन। मीनस अगर इक्वल समा देखिए असी फिर जो एंगल कवर्ड है दैट इज़ इक्वल, पहले 5 सैकेंड उन्हें कवर किया मान लो 5 रेडियन या 5 डिग्री, फिर कितने नोट करा कितने जाके अगले 5 सैकेंड च भी उन्हें एंगल कवर करेगी, उस तो अगे भी, दैट इज़ कॉल्ड यूनीफॉर्म मोशन। देयर कैन बी नॉन यूनीफॉर्म मोशन, कभी बॉडी तेज हो जाती कभी बॉडी स्लो हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनीफॉर्म मोशन। उत्थे साडी एक्सलरेशन प्ले करेगी। एक्सलरेशन की साडे कोल ट्रांसलेटरी मोशन की सी डी वी अपॉन डी टी, चलो मैं नहीं लिख रहा वैक्टर फॉर्म, तुहानूं सौखा है देखना, एक ही डी वी अपॉन डी टी, इत्थे भी सेम आएगा, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लेट
body has angular velocity v1 at point omega 1 at point A and omega 2 at point B। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਓਮੇਗਾ 1, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਓਮੇਗਾ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਓਮੇਗਾ 1, ਇਹਦੀ ਓਮੇਗਾ 2 ਮੈਂ ਜਸਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ A to B ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ T, then alpha is equal to omega 2 minus omega 1 t ऐसा लिख लो और it is d omega upon dt, small change in angular velocity during small change in time। तो ਇਹਦਾ लिखने का तरीका की आ rate of change of angular velocity, अगर कला रेट लिखा इट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, किसी वेरी ਆਪਾਂ कोई होर पैरामीटर भी आ सकता। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। साडे कोल ये चीज़ क्लीयर होगी सानू। हुण देखिए असी फरदर व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस। बनाओ डायमेंशनल फार्मूला। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इस ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਅਪੋਨ ਟੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ m0 l0 t ਮਾਈਨਸ 1। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ m0 l0 t ਮਾਈਨਸ 2। ਸੋ ਮਾਈਨਸ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇਟਸ ਐਸਾ यूनिट इज ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ रेडियन या ऐसे जगह पे एल ओमेगा की रेडियन पर सेकंड, नीचे एक और सेकंड आ गया सो रेडियन पर सेकंड स्केयर RAD रेडियन S पावर -2 दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। आ टर्म्स असीं देख लिया सारिਆਂ ने आ चुकी हैं साडे कोल। हुण ये बॉडी जिहड़ी आ A तो चल के दोबारा सारा चक्कर लगा के दोबारा ए आ गई। इट इज़ कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय वन रेवोल्यूशन? व्हेन ए बॉडी कंप्लीट्स इट्स वन सर्कुलर मोशन, पूरा सर्कल का चक्कर लगा के वापस आ जाए उस पॉइंट पे, दैन वी से दैट इट इज़ वन रेवोल्यूशन। एक टर्म आती है टाइम पीरियड। टाइम टू complete one revolution is called time period. It is denoted by capital T। ਅਸੀਂ ਨੂੰ T ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ capital T। Another term is there frequency। फ्रीक्वेंसी मीनस किन्नी बारी किन्नी टाइमिंग। अगर मैं कहता कोई बच्चा है कि तुम दिहाड़ी किन्नी बारी चाह पींदे जाओ, कहता मैं 3 बारी पीना। एनदर पर्सन सेस मैं 5 बारी पीना। इट मीनस फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग टी इज़ मोर इन द केस ऑफ सैकेंड पर्सन। तो फ्रीक्वेंसी की नोट कर दी है किन्ने टाइम एक खास टाइम किन्नी बारी कोई ईवेंट हो रहा। तो ऐस के फ्रीक्वेंसी की है नंबर ऑफ सर्कुलर मोशंस या रेवोल्यूशंस इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम च कितना रेवोल्यूशंस हो रही हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन यूनिट टाइम एस के किया आप सैकंड ही माने पर फिर भी पहले यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। It is noted by
एन और म्यू। आवर ध्यान देख लो प्लीज़, मैं लिखिया जल्दी दोबारा, एन और न्यू। इस तरह का वी वर्गा है न्यू। न्यू इज़ आल्सो सिंबल ऑफ, इस तरह सिंबल डिनोट करते फ्रीकुएंसी। कई बुक सारे न्यू करनगे, कई एन। तो जी डिप्लोमा के कोर्स मोस्टली वो है डिनोटेड बाय स्मॉल एन। कितने दूसरी बुक पढ़ो उत्थे न्यू आ जाए, बिल्कुल डरना नहीं आ। सेम ही चीज़ है, इट इज़ फ्रीकुएंसी की है। इट इज़ नंबर ऑफ रेवोल्यूशनस इन यूनिट टाइम इज इन 1 सैकेंड। एक सैकेंड च किन्ने चक्कर लग जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीकुएंसी। सो आ टर्म सारी असीं देख लिया किन्नियां सी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, then time period, time to complete one revolution, and frequency, how many revolutions are there in unit time. Next अखी देखिए इन्हां च आपस की रिलेशनस होणगे, उहदे बारे आपां देख लीए। So relation between time period and frequency. So let a body completes its one revolution. किसी बॉडी ने अपनी पूरी रेवोल्यूशन 1 कर ली है, तो टाइम टेकन क्या आएगा? टाइम टेकन कितना आएगा? इट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। असी डेफिनेशन की सी, पूरी रेवोल्यूशन कर लगे जिन्ना टाइम लगे, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो जी हुण आप एग्जाम्पल लै रहे हैं भी बॉडी ने अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली है, तो कितना टाइम लगा? टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी इस केस? पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, कितना एंगल कवर हो गया? 2 पाई। डांस साढ़े कर चुके असी, फिर साढ़े नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की साढ़े को आ चुका। हाउ मेनी रेवोल्यूशन आर? फ्रीक्वेंसी की है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अपॉन टाइम टेकन। की देखिया असी कितनी लगाई रेवोल्यूशन? 1। टाइम कितना लगा? टी। सो आर रिलेशन साढ़े को इतना आ चुका है। इस तो गाड़ी फरदर असी इन्हां च होर रिलेशन देख सकते हैं। तो फर्स्ट नैक्सट देखिए आप रिलेशन बिटवीन सारे देखिए आप टाइम पीरियड च की आ, फिर ये साढ़े की आ रहा साढ़े कोल ओमेगा वा थीटा। देखिए नैक्सट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट रिलेशंस। ओमेगा देखिए, ओमेगा एंड टी अगर तुहाडे मन च आए ना की रिलेशन हो सकता, तो अगेन वी टेक ए बॉडी इन ए सिंगल रेवोल्यूशन। लेट ए बॉडी completes 1 revolution। तो की देखिया असी व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज थीटा अपॉन टी। हुण 1 रेवोल्यूशन लगा, ड्यूरिंग 1 रेवोल्यूशन व्हाट इज एंगल कवर्ड? एंगल कवर्ड इज 2 पाई। फिर टाइम टेकन कितना आ जाएगा? ड्यूरिंग 1 रेवोल्यूशन टाइम इज टी, तो देयरफॉर ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी। एक साढ़े को ये रिलेशन आ गया, इन्हें फर्दर देखना है। नैक्सट आ जाए रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड एन फ्रीक्वेंसी। इनू एक्सटेंड कर देना। वी नो
एन की है, एन इज इक्वल टू 1/t। सो 1/t एन, इट मीनस टी क्या आ गया 1/n, जिस तरह मर्जी नूं लिख लो। तो वाट वुड हैपन, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। आह रिलेशन साढ़े को बन चुका है, 2πn साढ़े को आ गया। देख लो सारी टर्म्स की असी किया गया इस जगह पर। किसी समय असी एंगुलर वेलोसिटी नूं RPM च दसते हैं। RPM का मीनिंग की है, रोटेशंस पर मिनट, रोटेशंस पर मिनट। तो होर रिलेशंस ही देख लीए। अगर RPM इस तरह लिख दो, या कई बुक्स वाले RPM इस तरह मैंशन कर दें, वन एंड द सेम थिंग, रोटेशंस पर मिनट। सो टाइम टेकन कितना है, टाइम इज 1 मिनट। कितने सैकेंड आ गए, 60 सैकेंड। नैक्सट ही साढ़े को हैगा एंगल, कितना है साढ़े को नंबर ऑफ रोटेशंस इंटू 2π। एक चक्कर लगेगा तो 2π एंगल कवर करेगा, दो लगेंगे तो 2 ना मल्टीप्लाई जिन्हें भी होन। एस किस कितना इट इज RPM। तो देखिए वैल्यू फिल करके, व्हाट इज आवर ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, थीटा अपॉन t। सो व्हाट इज थीटा हियर, इट इज 60। सो वी गेट दिस वैल्यू 2π अपॉन 60 RPM, रोटेशंस पर मिनट। इस तरह रिलेशन साढ़े को आ चुका, 2π अपॉन 60 इंटू RPM। वी कैन राइट दिस रिलेशन। देख लो किस तरह टाइम कितना सी 60 सैकेंड, इस करके टाइम 60 सैकेंड आ गया। एंगल कितना कवर होएगा जिन्नियां रोटेशंस होणगियां, तो पर मिनट इनू असीं लिखिया RPM ने डिनोट किया सी। सो ओमेगा कैन आल्सो बी लाइक दिस, ये असीं नोट कर लिया। फरदर रिलेशंस देखिए असीं, ये असीं रिलेशन इन्हां च देख लिया। हुण ये देखना रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, कितना डिनोट करते असीं ओमेगा ना, एंड लीनियर वेलोसिटी। ये बॉडी सर्कल च मूव करती पई है, ये कोई स्पीड हैगी है, इट इज़ कवरिंग ए डिस्टेंस। ए तो बी जो जा रही है, इन्हें डिस्टेंस कवर किया, वो अपनी स्पीड हैगी साढ़े कोल। सो देखिए असी एस तो दोनों च असीं देखना की आ रहा। सो लैट इट्स वी, लैट ए बॉडी इज मूविंग in a circle at uniform speed। वो मान लिया असीं कितना कहते वी स्पीड नाल मूव करती पई आ। दैन वट इज़ वी इज़ अ डिस्टेंस आप स्पीड अपॉन टाइम। तो बॉडी ने इस जगह तो इतने जा लग्या की लगा, कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया ने ए बी, कुछ टाइम लगा इहदा टी, ये असीं नोट कर लिया। फरदर देखिए असीं व्हाट इज़ देयर ओमेगा, ओमेगा इज़ थीटा अपॉन टी। आ दो रिलेशन साढ़े को आ चुके आ, ओमेगा इज़ थीटा अपॉन टी, एक ए बी अपॉन टी, ये साढ़े मन च हैगे ने। हुण नैक्सट साढ़े को आ रहा फिर रिलेशन दोवां विच किस तरह बन सकदा, किहड़ी चीज़ इन्हां नूं आपस च जोड़दी पई है। कोई देखो इहदे डायग्राम च किस तरह आपस जोड़ सकदियां ने। वी नो थीटा की साढ़े को हुंदा, थीटा इज़ आर्क अपॉन रेडियस। की लिख सकते असीं
ए बी इज इक्वल टू आर थीटा। सो इस जगह ते सो देयर फोर वी जी कि ए बी अपॉन टी आ इज आर थीटा अपॉन टी। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਮੰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆਰ ਥੀਟਾ अपॉन टी, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ आर ओमेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। देख लो। सो मैं दोबारा तुहानूं करा रहा, समझ लो सारे स्टैप्स, जल्दी ना देखना है। तो मैनू पता कि रिलेशन आपस इन्हां दा हैगा थीटा ओमेगा इज थीटा अपॉन टी है एंड वी ए बी अपॉन की साढ़े को है ए बी अपॉन टी, दोनों इस तरह। इधर क्या आ गया थीटा, थीटा इज इक्वल ओमेगा टी। ये क्या आ जाएगा साढ़े को वी, ये कितना आ गया और सॉरी ए बी, इनका आपस रिलेशन आ गया वी टी। तो वी कैन कैलकुलेट द रिलेशन लाइक दिस आल्सो। पर चलो इस तरह कर लिया, एक फार्मूला लिख लिया, दूसरा थीटा लिख लिया, फिर ए बी की वैल्यू आर थीटा लिख दी असी, थीटा अपॉन टी इज़ ओमेगा। सो दिस इज़ द रिलेशन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम देख लो अगर डिमेंशनली चैक करना है रिलेशन, हम सारा रब कर रहे हैं। वैसे तो मन च क्वेश्चन है भी रिलेशन ठीक या गलत साढ़े को बन गया, तुहानूं शुरू च कीता डिमेंशन एनालिसिस। असी की कह रहे वाट आर डिमेंशनस ऑफ दिस M0 L1 T-1, डिमेंशन ऑफ डिस्टेंस रेडियस L, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ M0 L0 T-1, तो मिल के की बन जाएगा L1 T-1। सो डिमेंशनस आर करैक्ट एंड डिमेंशनल भी करैक्ट हैगा, अदरवाइज अं इस तरह फाइंड कर लिया। होर रिलेशन साडे मन च आएगा फरदर, असीं देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन alpha and linear acceleration A। जिथे एक्सलेरेशन आ गई इट मीनस वेलोसिटी ਜਾਂ वध रही है ਜਾਂ घट रही है। तो मान ली इस जगह तेरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, इट्स V1, इस जगह तो कितनी जा रही है V2। तो ख्याल रखना जो मैं वेलोसिटी बना रहा इट इज़ ऑलवेज टेंजेंट टू दिस, जी लीनियर वेलोसिटी है इट इज़ ऑलवेज टेंजेंट टू द पोजीशन। जिस तरह की पोजीशन आएगी इस जगह इधर टेंजेंट बनेगा, इधर टेंजेंट बनेगा। इस जगह तो कितनी वेलोसिटी है ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी जी साढ़े को आ रही है एट दिस पॉइंट इट इज़ ओमेगा 2। लेट ए बॉडी इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन A along a circular path। किसी सर्कुलर पाथ से बॉडी किसी एक्सेलरेशन A ना जा रही है, की देखिया आप लेट V1 and V2 be its linear velocity at A and B, ओमेगा 1 and ओमेगा 2 be its angular velocity at A and B। T is time taken to move from A to B। ए तो बी लगी जान लगे कितना टाइम लगा टी लगा। साडा एम की आ आप रिलेशन फाइंड करना, नोट कर लो प्लीज़। कोई एक रिलेशन देख लो, चाहे बी का देख लो, एल्फा का, चाहे ए का देख लो। वी नो व्हाट इज एल्फा
इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी ले लिया इस तरह। थोड़े आसान करने वास्ते लिख दी अल्फा टी ओमेगा टी, लिख लिया इस तरह रिलेशन। मार्क इट इक्वेशन 1। ये साडी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। वी नो ये रिलेशन देखा सी V इज इक्वल टू ओमेगा R आया जा। सो देयरफॉर ओमेगा कितना आ जाएगा V अपॉन R। सो इतों असी वैल्यू ओमेगा की फिल कर देनी इस रिलेशन च। देयरफॉर ओमेगा 1 कितना आ जाएगा ओमेगा 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R एंड ओमेगा 2 सैकेंड पोजीशन पे V2 अपॉन R। पुटिंग these values in equation 1। तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू सही फिल कर देनी है। देख लो प्लीज अगेन आर रिलेशन हुणे करके आए थे वी की आर ओमेगा या ओमेगा आर। सो व्हाट इज ओमेगा वी अपॉन आर। तो ओमेगा 2 V2 अपॉन आर ओमेगा 1 V1 अपॉन आर। सो आ वैल्यू असी इस जगह फिल कर देनी है। सो इतों मैं इन्हूं रब कर रहा हाँ देखो आ साडे को रिलेशन फिल आ दिखाई दे रहा ये असी फिल करना की आएगा अल्फा टी इज इक्वल टू V2 अपॉन आर V1 अपॉन आर। ये भी इधर लैके आ जी असी अल्फा टी आर V2 माइनस V1। सानू की चाहिए अपॉन टी करके देखिए अल्फा आर इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन टी। व्हाट इज दिस इज ए। so therefore A is equal to R alpha या alpha R इतने लिख लो because A is equal to V2 minus V1 upon T। We know that acceleration linear acceleration is change in velocity upon time। सो आ भी रिलेशन असी देख लिया ही आ रहा सिर्फ R का फर्क आ रहा ना वो च गया ऐसे V R ओमेगा एस केस साढ़े को आ गया रिलेशन A इज इक्वल टू R एल्फा। आ रिलेशन आ रहे हैं। आ स्टैप्स बड़े आसान ने नोट कर लो। कोई बच्चा किसी होर बुक चो पढ़े जाए मन च आइडिया आ जाए तो इस तरह भी कर सकता हो। वो कहेगा नहीं सर मैं इस तरह यूज़ करना V2 माइनस V1 अपॉन टी इधर चल पाँगा तो कोई नहीं इतने V2 वट इज V ओमेगा 2 R ओमेगा 1 R इस तरह आ जाएगा साढ़े को अगेन R इज़ कॉमन वो आइडिया अच्छा रहेगा सानू ओमेगा 1 हो गया सर मैं देखो जल्दी ने कर देता है। सो R वट इज दिस थिंग इज एल्फा। सो रिलेशन कैन आल्सो बी ड्राइव लाइक दिस। अगर एल्फा तो ए तो चलोगे फिर भी असी पहुँच जाना वा ओमेगा तो चलोगे सॉरी एल्फा तो चलोगे फिर भी असी पहुँच जाना रिलेशन तो। अगर रिलेशन सानू याद हो इन्हों आपस की है ने। सो दीस आर टू रिलेशनस ये आ चुके हैं। सो असीं की देखा कि दो टाइप की साढ़े को मोशन है लीनियर मोशन वो बारे आप देख लिया वो पैरल साढ़े को दूसरी टर्म्स आ चुकिया ने। इस तरफ देख लिया असी लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन अस कह दें। इधर असी कहता सर्कुलर मोशन। इधर की ऐसी टर्म साढ़े कोल डिस्प्लेसमेंट। देख लो कि पैरल कौन है डिस्प्लेसमेंट नोट करते सी एस ना सी। इधर कौन आ रहा है साढ़े कोल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्ड नाल एंगुलर आज का तो वी डिनोट इट बाय थीटा ताकि सिंबल साढ़े मन याद आ जाए। सिंबल देख के क्या दी इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इधर कौन आ रहा सी वेलोसिटी कि डिनोट करते असी वी ना। इधर क्या आ जाएगा साढ़े कोल एंगुलर वेलोसिटी।
डिवाइडेड बाय ओमेगा। इधर कौन आ रहा सी एक्सलरेशन, इधर को आएगा एंगुलर एक्सलरेशन। एल्फा। हुण तुहाडे मन 'च क्वेश्चन आ जाएगा कि जिहड़ियां इक्वेशनस ऑफ मोशन सी उहदे विच ट्रांसलेटरी मोशन च की पढ़िया सी असीं, याद होए v इज इक्वल टू u अपॉन at, s इज इक्वल टू ut अपॉन हाफ at स्केयर एंड v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as। की होएगा? बिल्कुल होएगा। जो जो असी लीनियर मोशन च करते रहे हैं लगभग सारा कुछ ही सर्कुलर मोशन च होएगा विद डिफरेंट सिंबल्स, हल्का जिहा मीनिंग अलग होएगा उस चीज़ का। तो जिस तरह की रिलेशन आ रहा है इत्थे, v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनीशियल वेलोसिटी, ये एक्सलेरेशन आ। सेम इस जगह लईदा सी। हुण इत्थे साडे कोल इहनूं मान लीता ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। फर्क ही है, इट इज़ फाइनल वेलोसिटी, इत्थे इनीशियल वेलोसिटी नूं दो सिंबल साडे कोल u एंड v। इस जगह ते असीं इनीशियल ओमेगा नॉट, ओमेगा के पैर जीरो नूं बोल लीता ओमेगा नॉट, ओमेगा जीरो और ओमेगा नॉट इट इनीशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड इट इज़ फाइनल। एल्फा सेम रिलेशन साडे को आ गया। इस तरह इस जगह ते थीटा हाफ एल्फा टी स्केयर, बिल्कुल सेम। देन आ कि साडे को आ गया ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर इज इक्वल टू 2 एल्फा थीटा। सेम जो जो अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह ते थीटा, v की जगह ते ओमेगा, a की जगह ते एल्फा आ रहा, सेम इक्वेशनस इधर बन रही। फिर अगे अगे जो से स्टडी करांगे यही देखा बिल्कुल वो पैरल ही इक्वेशनस आ रही ने। इधर साढ़े कौन आ रहा वा, मोमेंटम आ जाएगा। इस साइड पर कौन आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम। इस साइड पर आएगी साढ़े को फोर्स, इधर ਉਹਦਾ ना एंगुलर फोर्स नहीं होएगा, दैट वुड बी कॉल्ड टॉर्क एंड सो ऑन। ਅਸੀਂ पढ़ांगे। फिलहाल ਤੁਸੀਂ देख लो ਇਹਦੇ पैरल ਸਾਡੇ को आ रही ने सर्कुलर मोशन ਦੀਆਂ। इस तो अगे ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ देखना भी हाउ डू ए फोर्स, कितना ਕਿਹੜੀ फोर्स लगती ਜਿਹੜੀ बॉडी ਨੂੰ सर्कल 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੀ है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर ਉੱਤੇ बेस कुछ ਅਸੀਂ आर्टिकल करने हैगे ने, फिर कुछ एग्जाम्पल्स करांगे। तो दोस्त विल बी डिस्कस इन नैक्सट लैक्चर। थैंक यू क्लास।